Okay, so now last we had studied about the LSI, MSI and all concepts. Now we are gonna study about the schematic connections of memory and input devices to your microprocessor. ठीक है, अब हम लोग पढ़ रहे हैं कि microprocessor को हम लोग के जो इनपुट एंड आउटपुट बोलो एंड योर मेमोरी डिवाइसेस का कनेक्शन हम लोग किस प्रकार से देते हैं. वी आर गोना स्टडी दैट. ओके, नाउ दिस इज योर बेसिक स्कीमेटिक डायग्राम दैट आई हैव ड्रॉन, एंड फॉर योर सिंप्लिसिटी टू अंडरस्टैंड आई हैव टेकन अप 3 different colors using differed it with 3 different colors. The red one basically terms for your control bus. These all these 3 basic lines that are to and fro from and to the microprocessor. Okay, these are 3 buses, that is your control bus, address bus and your data bus. Okay, and after that these are your input devices. In the input devices side I have discussed for the memories, that is the RAM and ROM, and for the output devices side I have taken up my floppy disks and now hard disk nothing but your disk, that is your CDs and your pen drives. I hope you know that. Well, everybody knows that, not a matter. Coming up to the basic thing, I have as I have shown CAD. You can remember it by the name of Cadbury, and the C terms for to be the C indicates control bus, A indicates your address bus, D indicates your data bus. Okay, so now what are we gonna study? First of all, we are gonna study about the address bus. Okay, address bus is nothing but why, as the name indicates itself, address bus is used for carrying the address of memory locations. जो भी हमारा CPU whichever address my CPU wants to access or wills to access is what is carried by your address bus, and address bus is read or received, what you say, by all the devices that are connected to my address bus. ठीक है ना. एड्रेस बस से हमारा कौन कौन कनेक्टेड है, देखिए रैम रोम दोनों कनेक्टेड है, देन रैम एंड फ्लॉपी डिस्क बोथ आर कनेक्टेड, एंड दिस बोथ आर कनेक्टेड. तो जितने भी हमारे एड्रेस बस को कनेक्टेड डिवाइसेस जितने भी रहेंगे, ऑल ऑफ देम विल रिसीव द एड्रेस. पर रिसीव सब करेंगे, बट विच वन विल रिएक्ट और रिस्पॉन्ड to the CPU, back to the CPU, will be only one, जिसके पास में या जो रिसीव करेगा मेरा चिप एनेबल्स. ठीक है ना, चिप एनेबल सिग्नल जिसे रिसीव होगा फ्रॉम CPU, वो जो रहेगा वही अकेला रहेगा जो रिस्पॉन्ड करेगा या रिएक्ट करेगा टू द एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन विच इज कैरीड बाय माई एड्रेस बस टू एवरी डिवाइस. ठीक है, only that device will react. An example for that is your read, RD, write, WR, RD bar, WR bar, input output /M bar, etc. Okay, now what is this? I gave you examples, but what is it actually? This should be understood rather. So for that very reason we have this thing. See, for IOM, IO stands for your input output, okay, and this for your memory. Okay, when my CPU issues this signal, ये इंस्ट्रक्शन जब हमारा CPU इशू करता है, at that time what happens that it indicates whether it will communicate with input device or memory device. जब हमारा CPU it issues this very instruction, at that time it indicates कि उसे किसके साथ कम्युनिकेट करना है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट करना है या मेमोरी के साथ कम्युनिकेट करना है. ठीक है, और अगर उस वक्त अगर हमारा क्या होता है कि अगर इनपुट आउटपुट सिग्नल जो मेरा पास होगा थ्रू माई CPU, if it is high, then it indicates that my CPU has to communicate or wills to communicate with what? My input output devices. And if on the other hand the input output signal issued by my CPU is low, that means that it wants to communicate with my memory. Alright, so at that time, now ये हो गई बात कि वो किसे रीड करना चाहेगा.
ठीक है ना, ये हम लोगों ने इसकी बात की है. नेक्स्ट हम लोगों ने एग्जाम्पल कौन के दिए थे, 1 इज योर RD एंड W इज योर WR. ऑलराइट, ये दो हम लोगों ने दिए थे. करेक्ट. सो व्हाट डज इट मीन नाउ, जब CPU लो RD सिग्नल आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है ना, एट दैट टाइम जो मेरा डिवाइस उसे रिएक्ट कर रहा है, whichever device that is reacting or responding back to the CPU, it will understand on its own by this that my CPU wants to read the information. Info stands for your information, all right. And when low WR bar this signal is obtained, at that time low signal of WR bar is obtained. At that time जो मेरा responsible या मेरा responding ये रहेगा आपका what you call as device that will understand on its own कि right operation is to be carried out. That my CPU will be carrying out the operation to write something, that is it will send data to the device. करेक्ट. हम कुछ लिखेंगे तो डिवाइस तो भेजेंगे, मतलब डेटा हमको उधर तो भेजना ही होगा ना. दैट इज नथिंग बट दिस, द रिलेशन बिटवीन दिस टू, सेंडिंग डेटा टू द डिवाइस एंड राइटिंग ऑपरेशन. ऑलराइट. देन कम्स योर कंट्रोल बार. हम लोगों ने अब तक के पढ़े तो किसके बारे में पढ़े हम लोगों ने, एड्रेस बार के बारे में. कमिंग ऑन टू द कंट्रोल बार, व्हाट डज योर कंट्रोल बार सेज. कंट्रोल बार जो होता है लाइक इट्स डिफरेंट देन योर एड्रेस बार. एड्रेस बार क्या करता है कि उससे कनेक्टेड जितने भी डिवाइसेस है, ऑल द डिवाइसेस कनेक्टेड टू माय एड्रेस बार आर ऑल अप्रोच्ड. सबको सिग्नल प्रोवाइड होता है, हालांकि रिस्पॉन्ड एक करता है पर प्रोवाइड सिग्नल सभी को किया जाता है ना. हाउएवर दिस डज नॉट वर्क दैट. दिस डज नॉट रन एज अ ग्रुप ऑफ वायर्स ऑन द मदरबोर्ड. ठीक है ना, ये सिर्फ आपका जो सिग्नल नेसेसरी है फॉर पर्टिकुलर डिवाइस, इट रन्स फ्रॉम CPU टू डिवाइस. ये केवल उसी के पास जाता है जिसकी मुझे ज़रूरत है, यानी जो रिस्पॉन्सिबल या रिस्पॉन्ड करने वाला है ये डायरेक्ट उसके पास जाता है. एंड द एड्रेस बस जो होता है, इट नॉक्स अप डोर्स ऑफ एवरीवन ऑन माय पाथ, ऑन योर एड्रेस पाथ. ठीक है ना. सो coming next to your data bus, DB stands for your data bus indeed. And data bus का width जो होता है, data bus width is what it is equal to the word length of CPU. जो मेरा CPU का word length है, it is equal to the width of my data bus. ठीक है, अगर मेरा 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है तो उस वक्त 8 बिट की ही डेटा बस रहेगी. 16 बिट का है तो 16 बिट की ही डेटा बेस रहेगी. एंड 32 बिट्स का माइक्रो प्रोसेसर है तो 32 बिट का ही डेटा बस रहेगा. एंड सो ऑन दिस विल गो ऑन. ऑलराइट, नाउ ये हो गई बात हमारी डेटा बस के विथ की. व्हाट अबाउट माई एड्रेस बस विथ. एड्रेस बस विथ जो होता है, इट इज डिसाइडेड बाय द डिजाइन्ड मेमोरी एड्रेसिंग कैपेबिलिटी ऑफ CPU. जो मेरी ऑलरेडी प्री डिज़ाइन जो मैं लाती हूँ मार्केट से, यानी जो डेवलपर ने डेवलप किया हुआ है, उसका एड्रेसिंग कैपेबिलिटी जो रहता है CPU का, मेमोरी एड्रेसिंग कैपेबिलिटी ऑफ CPU, उसके वो डिसाइड करता है कि मेरे एड्रेस बार का विथ क्या होगा. सी फॉर एग्जाम्पल यू हैव दिस इंटेल 8085. ये 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर है. ठीक है, 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर है, इसका 16 बिट का एड्रेस बस है. Alright, address bus, not data bus. Please be very careful about this thing. Data bus is what it is, same to this one. हाँ, 8 bit MIPI तो 8 bit data bus ही होगा. However, मेरा एड्रेस बस कौन बताता है, तो कौन डिसाइड कर रहा है, मेमोरी एड्रेसिंग कैपेबिलिटी ऑफ CPU ये डिसाइड कर रहा है. ठीक है ना. तो 8 बिट MIPI 16 बिट एड्रेस बस इसका होता है. एंड 2 to the power 16 इज इक्वल टू 64 किलोबाइट्स का मेमोरी एड्रेसिंग कैपेबिलिटी इनका होता है. सिमिलरली हम इंटेल 8086 की बात करें तो 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर ये होता है, 20 बिट का इसका एड्रेसिंग बस होगा. एंड 2 to the power 20, दिस इज नथिंग बट योर फॉर्मूला. हाँ, 2 to the power 20 दैट इज 1 मेगाबाइट का मेमोरी एड्रेसिंग कैपेबिलिटी ये रखता है. So friends, I have given you some information about their memory and input devices connection all the way to your microprocessor, how it works, what are the basic functions that they carry out, and I hope you must have understood.